Good morning, class. So today I am going to start with the necessary accounts, as I told you how you have to prepare the asset account, and you know very well how we have to prepare the depreciation account, because in class 11th we already discussed the depreciation account. So I'll start with illustration number 24. You have to prepare the machinery account and the accumulated depreciation account for 18 and 19 on the basis of such informations. As you can see in your books, we have 2 years 2018 and 19. We have the opening balance of machinery and the closing balance, and the opening balance of depreciation and the closing balance. Now some things are mentioned here. During the year, a machine whose cost is 1 lakh, accumulated depreciation thereon 44, was sold for 30,000. So we will prepare the accounts first. Look at this. This is machinery account. I am preparing the two accounts side by side. Second is accumulated depreciation account. As you know, the balance of asset is debit in the brought down in the debit side. It is 5 lakh for 18, and by balance carried down for 2019 it is 6 lakh. And accumulated depreciation is the part of my liability. So liability brought down is in the opposite side. It is 164, and carried down in the debit side. To balance carried down, it is 1,80,000 as per your book. These are about the balances only. Next we have the term during the year, one machine whose cost is 1 lakh, depreciation charge thereon 44, was sold for 30,000. So here two terms are mentioned here कि 1 लाख की जो मशीनरी थी उसके ऊपर हमने depreciation लगाई 44. So in the machinery account, depreciation is to be recorded in the credit side as rupee 44. उसने उसको सेल किया 30,000 में. So the selling price is by bank, the sale is of rupee 30,000. Now you have to find out the profit or loss earned on this sale. What is the cost of machinery? 1 lakh. 44 की तो उसके ऊपर depreciation लग गई. So वो बची आपकी 56 की. अब 56 की मशीनरी को आप 30,000 में सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या हो रहा है? लॉस. सो वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस. द लॉस इज ऑफ रुपी 26,000. दैट्स ऑल. You need to find out the balance of this. The balancing figure is in the debit side. This is to bank. Means the balancing figure is related to purchase. ये आपका टोटल है 7 लाख. इधर भी 7 लाख आएगा. 7 में से 5 माइनस किए तो मीन्स आपने मशीनरी परचेज की 2 लाख रुपीज़ की. नाउ दिस डेप्रिसिएशन इज 44. दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट. नाउ अब इसके क्रेडिट में है तो डेप्रिसिएशन के कहाँ आएगा? डेबिट में. एंड यू हैव टू राइट टू मशीनरी अकाउंट as rupee 44,000. Now find out the balancing figure. This is the balance of depreciation. अब ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, इस साइड का टोटल जा रहा है. द बैलेंसिंग फिगर इज हेयर एज रुपी 60,000. अब एज आई सेड, ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, आपको याद होगा हमने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की थी उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते थे. नाउ वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन in the operating activity. As you can see, operating activity is prepared here. The depreciation charge on machinery is 60,000 जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है. और इन अकाउंट्स में से लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो एडेड इन द net profit, so we have to show this amount also. Now about the second, investing activity. Investing activity में आपको होता है सेल और परचेज ऑफ मशीनरी आती है. तो the sale of machinery is 30 only and the purchase is 2 lakh. Look at in your books also, sale is 30 and the purchase is 2 lakh. So you have to record this in the investing activity. So these are two accounts. Look at one more question, illustration number 26. Okay. Hero Limited had the following balances: non-current investment, opening or closing. Some adjustment is there. Only one account is to prepare here. दो अकाउंट्स तब बनेंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दो अकाउंट्स बनाए, वो तब बनेंगे जब दोनों अकाउंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और दोनों अकाउंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट दी हो. सो द बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज ब्रॉट डाउन हेयर एंड कैरी डाउन in the credit. The opening balance is 340 and the closing is 280. Now look at in the book.
During the year, the company had sold 40% of its original investment at a profit of 84,000. अब इसने आपको सिर्फ ये दिया है कि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसका हमने 40% सेक्शन 84,000 के प्रॉफिट पर सेल किया. कितना सेलिंग प्राइस है वो आपको मेंशन नहीं किया, तो आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट पर सेल किया. सो इन दिस the profit and loss on the sale of machinery, profit is to be recorded in the debit side as rupee 84,000. अब हमें निकालनी है सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, ही सेड ऑन द ओरिजिनल कोस्ट. ओरिजिनल कोस्ट साल के स्टार्टिंग में थी मशीनरी की 340, उसका 40% शेयर उसने सेल किया है. 340 का 40% इज 1,36,000. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द मशीनरी जो उसने सेल की है. 3,40,000 का उसने 40% सेल किया है, 40% है 136. अब इस 40% को उसने 84,000 का प्रॉफिट अर्न करके सेल किया. मीन्स द सेलिंग प्राइस इज 2,20,000. दिस इज द सेलिंग प्राइस. सो यू हैव टू राइट हेयर बाय बैंक the selling price is 2,20,000. Now find out the balancing figure. This is 5 lakh और आपका यहाँ पर टोटल आ रहा है कम, तो obviously the balancing figure is again in the debit side. You will write to bank. This is the purchase as ₹76. तो दोनों साइड्स को 5 लाख से इक्वल किया. बिल्कुल सिंपल था, बस माइनर सा मॉडिफिकेशन किया हुआ था इस क्वेश्चन में. So this is about this account. Next we have, look at one more question, 27. इसमें आपके 2 या 3 अकाउंट्स हैं. Look at this please. From the following particulars of Bharat Gas Limited, you have to find out the investing activity amount. ये कुछ assets और liabilities दिए आपको, 16 और 15 और 16 2 years दिए हैं. Patents were written off to the extent of ₹40,000 and some patents sold of ₹20,000. मैंने बोला है जिसकी भी एडजस्टमेंट और ऊपर इंफॉर्मेशन दी होगी हम सिर्फ उसी का अकाउंट बनाएंगे. सो वी हैव टू प्रिपेयर पेटेंट्स अकाउंट फर्स्ट. देन सेकेंड इज अ मशीन हुज कॉस्ट इज 140, डेप्रिसिएशन देयर ऑन 60 was sold for 50, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 140. दिस ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर. Then we have investment purchase 180 and some investment sold at a profit. This also we have to prepare. Amartex Limited paid dividend. डिविडेंड पे किया है. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ रिसीव्ड को शो करते हैं, पेड इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड. सो दिस इज़ ओनली फॉर द कन्फ्यूजन पर्पस हेयर. नेक्स्ट वी हैव ओके हेयर अमर टैक्स में हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें डिविडेंड रिसीव होगा. दिस इज़ नॉट पेड, दे पेड टू अस है, मीन्स वी हैव टू रिसीव. A plot of land is, this is rent received, so we will prepare later on. So firstly I am preparing the accounts. So first is a patents account. Look at this very carefully. Patents is my asset, so the brought down is here and the carry down is in the credit side. Look at the balance of patents. 280 आपका opening है, second term is patents 280 and 160. 280 and 160. They said now patents were written off to the extent of 40,000. patents को write off किया 40,000. intangible assets है तो मेरी obviously write off होगी. So we have to write this in the statement of P&L. This is my loss. We cannot record this as depreciation क्योंकि ये हमारी intangible asset है, इसके ऊपर depreciation हम नहीं लिख सकते. And some patents are sold at a profit. Profit दिया है आपका 20,000, तो profit आपका आता है profit on sale of patent in the debit side as ₹20,000. Then find out the balancing figure. ये आपका 3 लाख है यहाँ पर. This is 2 lakh. So the balancing figure is sales. क्योंकि हमने patents को sale किया था profit पर. So obviously the balancing figure is sales here. It is 3 lakh. This is the first account. Second we have to prepare the machinery account. Machinery again my asset. Brought down and carried down. The balance of machinery 10, 20 and 1240. 10,20,000 and 12,40,000. Now the adjustment. A machinery whose cost is 140
डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर हमने 60,000 की डेप्रिसिएशन लगाई है और उसको 50,000 में सेल किया। तो 140 की मशीनरी थी आपकी, 60 की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई। सो ऑब्वियस सी बात है 140 की मशीनरी पर अगर आप 60 की डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो मशीनरी कितने की बचेगी, सिर्फ 80,000 की। उस 80,000 की मशीन को आप 50,000 में सेल कर रहे हो तो हमें क्या हो रहा है, 30,000 रुपीज़ का लॉस। सो इन द डेप्रिसिएशन अकाउंट यू हैव टू राइट डाउन loss on sale of the machinery is 30,000 and by bank for the selling price it is 50,000. Next is depreciation charge during the year was 140. Now depreciation is 140. अब आप कहेंगे कि ये दो डेप्रिसिएशन थी तो मैम आपने ये भी क्यों नहीं लगाई। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि दिस 60,000 इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दिस पर्टिकुलर 140 की मशीनरी के ऊपर, और हमें अपने अकाउंट में होल मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगानी है जो कि है 140। इस 60,000 का यूज़ सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमने किया है। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द होल मशीनरी। फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। इट इज़ अगेन इन द डेबिट साइड एज ₹4,40,000. Third, we have to prepare the investment account. Investment account. The brought down is in the debit, carry down in the credit. Brought down है हमारा 60 and carry down is 160. Now, look at this. 10% investment were purchased for ₹1,80,000 and some investment was sold at a profit of 20,000. उसने कहा है 180 की तो investment हमने purchase की। सो टू बैंक परचेज किए हमने 180 की और कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेल किया प्रॉफिट पर 20,000 के। प्रॉफिट ऑन सेल इज 20,000. दैट्स ऑल अबाउट दिस। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट तो इसमें नहीं आएगा। द फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, इट इज़ 260, यहाँ 160 है तो हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, सेल किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सेल करने पर मुझे प्रॉफिट हुआ था। ऑब्वियसली मेरी बैलेंसिंग फिगर सेलिंग प्राइस ही आएगी। इट इज़ 1 लाख क्लोज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज 3 अकाउंट्स यू हैव टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एज यू कैन सी, लुक एट इन योर बुक्स। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आपको एसेट्स मिली है गुडविल, 1 लाख से 3 लाख हो गई, मीन्स वी परचेज द गुडविल ऑफ ₹2 लाख, आउटफ्लो ऑफ कैश। सेकेंड हमने बनाया पेटेंट्स अकाउंट। पेटेंट्स अकाउंट में मैंने लिखा सेल ऑफ पेटेंट्स, इट इज़ 1 लाख रुपीज़, दिस इज इनफ्लो ऑफ ₹1 लाख। नेक्स्ट वी प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हमने सेल ऑफ मशीनरी की 50,000 और परचेज की 440, तो 50 इज़ एन इनफ्लो एंड 440 इज़ एन आउटफ्लो, एज यू कैन सी इन योर बुक्स। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की 180 की आउटफ्लो और सेल हमने की 1 लाख की, दिस इज एन इनफ्लो। नेक्स्ट वन वी हैव एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4 and 5। लुक एट द फिफ्थ वन फर्स्ट। ये एक रेंट था मुझे जो रिसीव हुआ, इट इज़ वेरी सिंपल, रेंट रिसीव्ड इज माई इनकम, सो रेंट रिसीव्ड इज ₹30,000 एज यू कैन सी इन योर बुक्स। एंड वन मोर थिंग, दे सेड अमरटेक्स में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ से मुझे 10% से डिविडेंड मिला है शेयर्स के ऊपर। लुक एट अमरटेक्स कंपनी के जो प्रीवियस ईयर में आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसी के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 2015 में मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे जिसके ऊपर 10% से डिविडेंड रिसीव्ड होगा, इट इज़ ₹10,000 इन द सोल्यूशन। एंड द सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं भी की हुई है तो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट रिसीव होगा। सो आपकी इन्वेस्टमेंट है 10% लॉन्ग इन टर्म इन्वेस्टमेंट, वही आपने जो 2015 में इन्वेस्ट किया था 16 के एंड में आपको उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो 60,000 के ऊपर 10% से इंटरेस्ट मुझे रिसीव होगा 6,000। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये नेगेटिव में है, सो अगेन इट इज़ कैश यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So this is about the investing activity. The next is activity related to cash flow statement is financing activity that I will discuss in my next video. Up to that, sort out the question related to the investing activity. Thank you so much and take care of yourself.